Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class grade 12, chapter 16 hydrocarbon. Today is the fifth lecture, part B. Last lecture we started the reactions of alkene. In last lecture we stated about the hydrogenation, hydrohalogenation, hydration, and today in this lecture we will start from the halogenation, halohydration, epoxidation, ozonolysis and polymerization. Let's start from the halogenation. Halogenation means that is actually the addition of halogen. Okay, addition of halogen in the alkene molecule is known as halogenation. Let me recall you students, in last lecture we started the electrophilic addition reactions. ठीक है, जिसमें अल्कीन का एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अपने अंदर ऐड कर लेता है. यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं हैलोजन की, इस वजह से यहाँ पे हैलोजन मॉलिक्यूल जो है वो आके ऐड हो जाएगा अल्कीन मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है, नाउ जस्ट see the reaction. We have to focus on this double bond in electrophilic substitution reaction. Let me tell you first that between two carbon there is a one sigma bond and second is a pi bond. Pi bond is a weak bond और pi bond हमारे पास बनता क्यों है? क्योंकि दोनों कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अटैच करके इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं. अब जब हैलोजन इस कार्बन पे या अल्कीन पे जब अटैक करेगा तो अटैक करके क्या होगा, ये वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा. ठीक है, अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा तो हमें कुछ इस तरह से शो होगा. ठीक है, और ये पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट जस्ट ऑब्जर्व कि हमारे पास इस कार्बन की वैलेंसी एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अटैच है, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड कार्बन के साथ अटैच है. ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन के पास अवेलेबल है. ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये हैलोजन मॉलिक्यूल भी हमारे पास इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं. यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, एक हैलोजन हमारे पास यहाँ पर अटैच हो जाएगा और दूसरा हैलोजन हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा जिसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड. Okay, and let me tell you students, the reaction is carried out in presence of the inert solvent like carbon tetrachloride, and the reaction is carried out at room temperature. Okay, and we obtain the vicinal dihalide. Why it is called the vicinal? Vicinal mean neighbors, and you may see student here that here two adjacent carbon having the one halogen and the second carbon having the second halogen. क्योंकि दोनों neighbors के दरमियान halogen आके अटैच हो जाते हैं, इस वजह से इसको vicinal dihalide कहा जाता है. As you know very well students, halogens हमारे पास कौन कौन से होते हैं? We have the fluorine molecule, we have the chlorine molecule, and if we observe the reactivity of the halogens, हमारे पास fluorine बहुत highly reactive होता है, chlorine उससे कम होता है. Then we have the bromine, and in the last iodine. Iodine normally react नहीं करता है. Fluorine is very reactive, very vigorous, और ये इतना high reaction show करता है that थोड़ा सा difficult हो जाता है इसको control करना. तो in normal in laboratory we have the chlorination and bromination. Okay students, now come to the mechanism of the halogenation. In mechanism we have a molecule of the bromine. This means that we are going to carry out the bromination. Students you just observe, here we have a curly arrow. curly arrow आपको कब शो किया जाता है? ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो करता है. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस तरफ इस कर्ली एरो का टेल होता है, और जहाँ पर जाके ये इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं या किन से अटैच होते हैं विद एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, वहाँ पे उस एरो का हेड शो किया जाता है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स बाय ब्रेकिंग ऑफ द पाई बॉन्ड हमारे पास क्या हो जाता है, एक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, एक यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन. अब हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ एंड थर्ड वन विद द सेकेंड कार्बन, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास फ्री है एंड सेम हियर हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है. नाउ कम टू द ब्रोमीन मॉलिक्यूल. ब्रोमीन मॉलिक्यूल में भी सेम स्टूडेंट, इस कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया होता है. ठीक है, अब जब ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल हमारा प्लोराइज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कीन, तो हमारे पास पहले आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इस ब्रोमीन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है. पार्शल मीन कि दोनों
एटम्स ने अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट थोड़ा सा हमारे पास ब्रोमीन नेगेटिव की तरह थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन, इट गेट पोलराइज्ड, और पोलराइज्ड होकर हमारे पास क्या होता है कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कम्प्लीटली हमारे पास एक ब्रोमीन की तरफ आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इस ब्रोमीन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये ब्रोमीन नेगेटिव हो जाता है और ये ब्रोमीन जो है कम्प्लीटली पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। पहले ये थे पार्शल नेगेटिव एंड पार्शल पॉजिटिव, एंड बिकॉज ऑफ द अल्कीन अब ये कम्प्लीटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमारे पास ये ब्रोमीन जो हमारे पास कम्प्लीटली पॉजिटिव हो गया है, अब ये जाके अटैच हो जाएगा विद दिस कार्बन, यू कैन से दैट बिटवीन दिस टू कार्बन्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ इन दोनों कार्बन्स के दरमियान आके ये ब्रोमीन पॉजिटिव आके अटैच हो जाएगा एंड वी विल ऑब्टेन द ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। ब्रोमोनियम आयन हमारे पास दोनों कार्बन के दरमियान आके अटैच हो जाएगा और इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो कम्प्लीटली ये वाला ब्रोमीन ले लेता है, इस वजह से यहाँ पे आपको कर्ली एरो आपको शो कर रहा है कि हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ब्रोमीन ने दोनों ले लिए हैं, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट ब्रोमोनियम आयन फॉर्म हो जाता है। ब्रोमोनियम आयन हमारे पास एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। इस अनस्टेबल कंडीशन में क्योंकि हमारे पास ये ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज की वजह से अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, तो ये क्या करता है, अब ये इस कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करना शुरू करता है तो इससे ये वाला ब्रोमीन स्टेबल होना शुरू हो जाता है, बट ये जो हमारे पास कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होना शुरू हो जाता है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता है इसका मतलब ये है, लेट मी राइट अगेन, इस पर पॉजिटिव चार्ज जब अपेयर होना शुरू हो जाता है इसका मतलब है इट बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। यहाँ पे हमारे पास ब्रोमाइड आयन है विच इज़ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट ग्रुप। एफिशिएंट मीन इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसने ब्रोमीन से लिया था, इनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है और अट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देता है और जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इस तरह का बॉन्ड फॉर्म हो जाता है विच इज़ नोन एज अ विसिनल डाइब्रोमाइड। अगर हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा देन इट विल बी नोन एज विसिनल डाई क्लोराइड। Got it, student? Let me tell you, student, that the reaction is mainly applied for the detection of the double bond in any molecule, because the bromine molecule color is normally brown in color. Okay, but after the reaction with any double bond, that may be ethene, propene, butene, किसी भी अगर कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल इस तरह से रिएक्ट करके ब्रोमिनेशन कर देता है और जो इसका ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है और हमारे पास एक कलरलेस सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। सो इसको मेनली अप्लाइड किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन एनी मॉलिक्यूल। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज़ नोन एज हेलोहाइड्रेशन। हेलोहाइड्रेशन में हमारे पास होता क्या है? हेलोहाइड्रेशन में दैट इज़ एक्चुअली द एडिशन ऑफ द हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड किसको कहा जाता है? अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच होता है तो इसको हाइपोहेलस एसिड कहा जाता है, ठीक है। अगेन लिसन, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड इज कॉल्ड द हेलोहाइड्रेशन। ओके, नाउ कम टू द मॉलिक्यूल। हमारे पास होता क्या है स्टूडेंट्स? इन अल्कीन रिएक्ट विद द हाइपोहेलस एसिड गिव द हेलोहाइड्रेन। अब इसमें होता क्या है? इन दिस रिएक्शन स्टूडेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट बिकम रिएक्टेंट टू। हियर द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट इज वाटर। अब हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास अल्कीन मॉलिक्यूल है, वी हैव द हेलोजन मॉलिक्यूल, हेलोजन मे बी क्लोरीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल, एंड सॉल्वेंट वी हैव द वाटर। सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट? ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। दैट इज़ द हाइड्रोजन हेलाइड हमारे पास बन जाएगा और दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज़ द हाइपोहेलस एसिड। एंड स्टूडेंट यू जस्ट ऑब्जर्व हमारे पास ये हाइपोहेलस एसिड किस तरह से बन रहा है। यहाँ का एक हैलोजन वाटर के एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर देता है हाइड्रोजन हेलाइड, और रिमेनिंग जो हमारे पास हैलोजन है और यहाँ रिमेनिंग हमारे पास जो OH मॉलिक्यूल है
वो हमें फॉर्म करके देगा हाइपोहेलस एसिड। अब जो ये हमारे पास हाइपोहेलस एसिड फॉर्म हो गया है, ये हाइपोहेलस एसिड इट विल अटैक ऑन दिस वीक पाई बॉन्ड। सेम जैसे हमारे पास अभी उसमें हुआ था हेलोजिनेशन में, वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, और वापस लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, यहाँ से हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नाउ ये हाइपोहेलस एसिड मॉलिक्यूल विल अटैक ऑन दिस कार्बन, वन हेलोजन विल अटैच हेयर, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास दूसरे कार्बन पे अटैच हो जाएगा, और हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा विच इज़ नोन एज द हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन हमारे पास बन जाता है, एंड बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, अगर हमारे पास क्लोरीन होगा तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl वो फॉर्म हो जाएगा, और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल अगर हमारे पास ब्रोमीन होगा तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट विल बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यू गॉट इट स्टूडेंट, दैट इज़ द हेलोहाइड्रेशन। और इसमें भी हमारे पास सेम वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, नाउ कम टू द इपॉक्सीडेशन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, यू हैव टू ऑब्जर्व इट। किस तरह से इपॉक्सीडेशन, दैट इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is epoxide? Addition of the epoxy group take place. In this reaction, addition of epoxy group will take place. Reaction of per acid with alkenes form the epoxide and carboxylic acid. हमारे पास जब अल्कीन रिएक्ट करता है पर एसिड के साथ, अब आगे मैं आपको बताऊंगी पर एसिड क्या है। जब अल्कीन्स रिएक्ट करता है पर एसिड के साथ तो हमारे पास बनता है इपॉक्साइड एंड वी ऑब्टेन द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इपॉक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीरेन रिंग। ऑक्सीरेन रिंग भी इसको कहा जाता है इपॉक्साइड को। नाउ व्हाट इज इपॉक्साइड? ये हमारे पास मॉलिक्यूल है इपॉक्साइड का। मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट सा मॉलिक्यूल है। इसमें हमारे पास 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन इस तरह से साइकिल बनाते हैं। ठीक है, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन के दरमियान साइकिल फॉर्म होता है, इसको कहा जाता है इपॉक्साइड। ठीक है, नाउ कम टू द पर एसिड। जो यहाँ पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया था कि अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है पर एसिड। पर एसिड क्या होता है? दैट इज एक्चुअली द परऑक्सी एसिड भी इनको कहा जाता है। पर एसिड इज एक्चुअली एन एसिड विच कंटेन एन एसिडिक OH ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता बल्कि इसके अंदर OH ग्रुप होता है। और यू कैन से दैट इट हैज़ एन एडिशनल ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको याद हो स्टूडेंट, मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था, और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास क्या होता है? हमारे पास R के साथ COOH इस तरह से जो अटैच होता है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो पर एसिड होते हैं या परऑक्सी एसिड होते हैं, इसमें OH ग्रुप तो होता है लेकिन एक एडिशनल ऑक्सीजन भी यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, एडिशनल ऑक्सीजन भी होगा। किस तरह से? यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, यू जस्ट ऑब्जर्व द फर्स्ट वन। आप देख सकते हैं ये है हमारे पास परऑक्सी एसिड। नॉर्मली हमारे पास हैलोजन में क्या होता है? ऑब्जर्व द जो हमारे पास नीचे शो किया जा रहा है, इसको ज़रा ऑब्जर्व करें। ये हमारे पास नीचे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, RCOOH। लेकिन अगर ऊपर वाले में आप देखें तो हमारे पास CO और ये OH तो है, लेकिन ये है हमारे पास जो कि एक्स्ट्रा एडिशनल ऑक्सीजन इसके अंदर होता है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह। लेट मी राइट हियर कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास क्या होता है? RCOOH, लेकिन पर एसिड के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक और एडिशनल ऑक्सीजन होता है, इसको कहा जाता है पर एसिड। यू गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द, हमारे पास होता क्या है? इपॉक्सी ग्रुप इसके अंदर ऐड होता है, फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। नाउ स्टूडेंट्स, यू जस्ट ऑब्जर्व, हमने करना क्या है इस रिएक्शन के अंदर? हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें अपना फोकस कहाँ पर रखना है? इस डबल बॉन्ड पे। ठीक है, ये हमारे पास है प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए हम इसे कहेंगे प्रोपीन। ठीक है, लेकिन एडिशन रिएक्शंस में हमारे पास मेनली जो डबल बॉन्ड का एक वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन द डबल बॉन्ड। ओके, नाउ ये हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह का है कि ये हमारे पास C6H5 है। ठीक है,
और ये बाकी लेट मी राइट इट अगेन लाइक दिस कि ये हमारे पास C6H5 जो कि एक रिंग है वो अटैच है किसके साथ, C O और ये जो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा जो एडिशन है जिसको कहा जाता है पर एसिड। और अगर हमारे पास एसिडिक एसिड होगा तो इसे हम परऑक्सी एसिटिक एसिड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक रिंग अटैच है, ठीक है, जो कि हमारे पास बेंजीन की तरह की रिंग है, इसलिए हम इस कंपाउंड कहेंगे परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, अगर हमारे पास ये एक OH ये एक ऑक्सीजन एडिशनल ऑक्सीजन नहीं होता तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल ऑक्सीजन it is known as peroxybenzoic acid. Now क्या होगा हमारे पास, peroxybenzoic acid will react with the alkene to form the epoxide और फिर उसके पास हमारे पास प्रोपीन रिएक्ट करेगा पेरोक्साइड से, तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। Now let me tell you student, the reaction will be carried out in the presence of the catalyst, and the catalyst we are using that is the ट्राइक्लोरोमीथेन हमारे पास हो गए जो कि यहाँ पे रिएक्ट करें। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, अब आपको ऑब्जर्व करना है, हमारे पास यहाँ पर है ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे पास इस डबल बॉन्ड के साथ आके अटैच हो जाएगा और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा ईपा ऑक्साइड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इपॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा। ये क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था वो आके यहाँ पे दोनों कार्बन के दरमियान आके रिंग फॉर्म कर दिया, इपॉक्सी प्रोपेन, बिकॉज वी हैव द 3 कार्बन, वो फॉर्म हो जाएगा और रिमेनिंग जो हमारे पास रह जाएगा ये नॉर्मल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास अल्काइल ग्रुप की जगह यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच है, दैट्स व्हाई नाउ इट इज़ नोन एज बेंजोइक एसिड। ये गॉट इट स्टूडेंट, ये हमारे पास था इपॉक्सीडेशन। नाउ कम टू द ओजोनोलिसिस। अब जब ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, डेफिनेटली यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ द ओजोन इज द O3, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ओजोन रिएक्ट विगरसली विद अल्कीन टू फॉर्म अनस्टेबल मोलोजोनाइड। अब हमारे पास ओजोन रिएक्ट करेगा, ओजोन अटैक करेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं, अभी तक हम लोग एशन कर रहे थे, यानी कि हाइड्रेशन, हेलोजनेशन, हेलोहाइड्रेशन, इपॉक्सीडेशन। अब यहाँ हमारे पास नाम थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेसेस, ठीक है, ओजोन लेसेस, लेसेस मीन ब्रेकिंग। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से ओजोन मॉलिक्यूल अटैक करेगा ऑन द अल्कीन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इथीन है, ये अटैक करेगा ऑन द अल्कीन। अब हमारे पास जब ये अल्कीन अटैक करेगा तो हमारे पास ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है ये आके इस जगह पर इस ब्रेक को बाउंड करेगा, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड जो मैं अभी इतनी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, डबल बॉन्ड में से वीक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और जब ये अटैच हो जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाता है विच इज़ नोन एज मोलोजोनाइड। और ये मोलोजोनाइड जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अब दोनों कार्बन के दरमियान पहले डबल बॉन्ड था, अब यहाँ दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ये कंप्लीट ओजोन हमारे पास यहाँ पर आके अटैच हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट, अब ये क्योंकि अनस्टेबल है ये अपने आप को अरेंज करेगा और अरेंजमेंट के बाद हमारे पास इस तरह का ओजोनॉइड बन जाता है, ठीक है। देख सकते हैं इस मोलोजोनॉइड में और ओजोनॉइड में क्या डिफरेंस आया है, डिफरेंस ये आया है कि ये ऑक्सीजन यहाँ से हट के इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर आके अटैच हो गया, ठीक है। शो कर दिया मैंने आपको कि इस तरह से हमारे पास ओजोनॉइड बन जाएगा जो कि हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अच्छा, लेट मी टेल यू स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है ओजोनॉइड का ये हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी रिएक्ट करता है और हम इसमें जिंक भी प्रोवाइड करते हैं। ओजोनॉइड आर एक्चुअली द अनस्टेबल कंपाउंड एंड देन इट रिड्यूस डायरेक्टली ऑन द ट्रीटमेंट विद द जिंक एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये जो हमारे पास ओजोनॉइड है अब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, जिंक के साथ, रिडक्शन होगी एंड हमारे पास ऑब्टेन होंगे कार्बोनाइल कंपाउंड, ओके। और यू कैन से कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं दैट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये भी हमारे पास इनकी फॉर्मेशन भी हमारे पास इसी तरह ओजोनोलिसिस से होती है। अब जो हमारे पास ओजोनॉइड बन गया है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड वी विल हैव द फॉर्मेल्डिहाइड। अब ज़रा ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, यू जस्ट फोकस ऑन दिस ओजोनॉइड। इस ओजोनॉइड से हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड कैसे फॉर्म हो रहा है,
फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, O डबल बॉन्ड CH और यू कैन से CH2O, ठीक है, हमारे पास होता है ओजोन फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला CH2O। अब ये CH2O अगर आप ऑब्जर्व करें, एक फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास ये रहा, ठीक है, एक फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास यहाँ है, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ हमारे पास रह जाएगा एक फ्री ऑक्सीजन, ये फ्री ऑक्सीजन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, वाटर की ऑक्सीजन के साथ, एंड वी विल हैव द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब जब ये हमारे पास इस तरह से दो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे तो यहाँ पे लेट मी राइट अगेन, यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ दो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस तरह से, तो हमारे पास एक फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ये दूसरा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एज आई टोल्ड यू द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक, तो हमारे पास ओजोनलेसिस में क्या होता है कि हमारे पास ये जो जिंक है ये फिर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, और जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हमारे पास एक ऑक्सीजन आके इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हमें वापस मिल जाएगा। यू गॉट इट स्टूडेंट? और लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये ओजोनलेसिस जो है इट इज़ यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ये टेस्ट होता है हमें बताने के लिए कि हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। ओजोनलेसिस जो है इट एक्चुअली यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन एंड द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड इज चेंज इनटू द कार्बोनाइल ग्रुप। तो जहाँ पर हमारे पास इस तरह से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओजोनॉइड बन जाएगा, तो हमें एक हिंट मिल जाएगा कि हमारे पास इस जगह पर अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ठीक है स्टूडेंट्स। द प्रोसेस इज नोन एज ओजोनोलिसिस। नाउ कम टू द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक फैमिलियर वर्ड है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। व्हाट इज दिस? दैट इज एक्चुअली द इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इज नोन एज मोनोमर्स combine together to form a large molecule which is known as polymer. Small molecule, let me show you, small molecule known as monomer and large molecule जो form हो जाएगा that is known as polymer, ठीक है, and the process is known as polymerization, ठीक है। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास किस तरह से होगा, ये हमारे पास है अल्कीन, अल्कीन में हमारे पास हमने इथीन के मोनोमर्स लिए हैं, एन जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारे पास जितने भी हम लोग अल्कीन के ले सकते हैं नंबर, चाहे 4, 5, 6, 7, चाहे जितने भी हम मोनोमर्स लें अल्कीन के, इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर वी प्रोवाइड द 400 अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड वी प्रोवाइड द टेम्परेचर। हम रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर दैट इज़ अबाउट द 100 एटमॉस्फेयर, और फिर हम थोड़े से ट्रेसेस यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के अबाउट 0.1%। And let me tell you students, good quality of the you can say कि polymer we can obtain in the presence of the catalyst, और catalyst हमारे पास mainly जो होता है अल्मोनियम ट्राइथाइल होता है, और इसके अलावा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इनकी प्रेजेंस में हमारे पास ज़्यादा अच्छा पॉलीमर फॉर्म होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास सेम जैसे कि पहले वाले में एडिशन रिएक्शन हो रहा था, इसी तरह से हमारे पास जस्ट ऑब्जर्व दिस डबल बॉन्ड, हमारे पास वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा, और यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। फिर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि एक और जब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, यहाँ पर जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कार्बन के, कोई एक और CH2 ग्रुप आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी कोई CH2 ग्रुप इस तरह से आके अटैच हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास जो मोनोमर्स होंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द पॉलीमर। आप देख सकते हैं यहाँ हमने इथीन मॉलिक्यूल से फॉर्म कर लिया है पॉलीइथीन। यहाँ पर आपको N नंबर शो किया जा रहा है, N का मतलब ये कि आप जितने भी इथीन मॉलिक्यूल्स लेंगे वो सारे मोनोमर से पॉलीमर में अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो लाइन आपको सिंगल बॉन्ड शो किया जा रहा है इसका मतलब है चेन, हमारे पास चेन फॉर्म में इस तरह से हमारे पास बहुत सारे अनलिमिटेड यू कैन से, या जितने भी अगर आपने मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो उस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट चेन बन जाती है, ठीक है।
और स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपकी बुक के अंदर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। आपको बताया गया है कि हमारे पास पॉलीमर एंड कौन से होंगे, मोनोमर्स कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नेचुरल मोनोमर होता है वो अमाइनो एसिड्स होता है और इसका पॉलीमर्स होता है वो प्रोटीन होता है। नेचुरल हमारे पास अगर ग्लूकोज है वो मोनोमर है तो वो फॉर्म करते हैं पॉलीमर स्टार्च। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आपको गो थ्रू करना है उस टेबल से। नाउ कम टू द क्विक क्विज। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2,3-dimethyl 2-butene इज़ ओजोनोलाइज्ड। ठीक है, अब आपने मॉलिक्यूल बनाना है, आपने ओजोन की रिएक्शन करवाना है, आपने सिर्फ फोकस करना है डबल बॉन्ड पे। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे ओजोन के मॉलिक्यूल को अटैच करना है, फिर रीअरेंजमेंट करनी है सेम जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, सेकेंड इज़ द हाउ विल यू प्रिपेयर 1 ब्यूटीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये हमारे पास पार्ट ए से आ रहा है। ठीक है, जो हमने लेक्चर 5 पार्ट ए किया था उसमें हमने प्रिपरेशन की थी किस तरह से अल्कीन को प्रिपेयर किया जाता है अल्कोहल से, अल्काइल हैलाइड से। इन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय द फॉलोइंग हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोहाइड्रेशन एंड इपॉक्सीडेशन। यू हैव टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई एम श्योर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।